Rotary International President nominee Mr. Sang-Koo Yoon from South Korea visited Mumbai, attending various functions and project inaugurations aimed at fostering community development and global engagement. Mr. Yoon, a visionary leader renowned for his dedication to humanitarian service, interacted with Rotary members and community beneficiaries, emphasizing the organization's commitment to sustainable initiatives. During his visit, Mr. Yoon was accompanied by key Rotary leaders, including Rotary International Director Mr. Raju Subramanian, past District Governor Mr. Rajendra Agarwal, and District Governor nominee 2026-27 Mr. Rajan Dua. Their discussions focused on Rotary's major humanitarian projects, including polio eradication, clean water and sanitation initiatives, education and youth empowerment, disaster relief, and medical assistance programs, such as pediatric heart surgeries, cataract surgeries, dialysis support, and cancer care. Rotary leaders reiterated their appeal to the government to recognize and support their efforts in community development. They called for enhanced policy backing, increased funding, and strategic collaboration to maximize the impact of Rotary's initiatives. The event witnessed active participation from Rotary members and dignitaries, reinforcing the organization's commitment to creating resilient and equitable communities through collective action. As I mentioned before, I love Indian people and food. So it's a great pleasure for me to come back to India anytime. But this time especially, there is a district conference, annual district conference between the districts in Mumbai. There's the two districts, 3141 and 3142. They're having a district conference. And I'm here representing the president of Rotary International, Stephanie Urchik, to that district conference. आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राजन दुआ है। मैं लास्ट 25 साल से रोटेरियन हूँ एंड 2 साल के बाद इन द ईयर 26-27 मैं मुंबई डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अब हम लोग मेल न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे, ये रोटरी के लिए बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। हमारे 123 क्लब हैं मुंबई में, उसमें से मैं बहुत इजीली आपको बताता हूँ कि एटलीस्ट 100 क्लब्स हैं जो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं अन्नपूर्णा। ये हम मंदिरों में करते हैं, ये हम बॉम्बे के चॉल्स एंड स्लम्स में करते हैं, स्कूल्स के बाहर करते हैं। हर क्लब महीने में 2 बार अपनी तरफ से अनलिमिटेड लोगों को खाना खिलाता है, पौष्टिक खाना खिलाता है, गिविंग प्रेफरेंस टू मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स, छोटे बच्चे। तो ये हमारा एक बहुत ही फेवरेट प्रोजेक्ट है कि मुंबई में कोई भी रात को भूखा नहीं सोएगा। अभी जो आगे आने वाला साल है, रोटरी के कुछ मिशंस बहुत वेल डिफाइंड हैं कि हमको इन्हीं फोकस एरियाज में काम करना है। उसी के मद्देनजर रखते हुए हमारा जो एक प्रोजेक्ट जो अभी हम लोग बना रहे हैं, धारावी के स्लम में, रादर लेट मी से अर्बन स्लम्स, पूरे मुंबई में जितने स्लम है, हम 5000 डेस्टिट्यूट लेडीज को आइडेंटिफाई करेंगे who are widows, crippled, maybe rape victims, the poorest of the poor। 5000 लेडीज के साथ हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे where we will train them in very needy and required trades of today, and this will be completely free of cost। उनको पूरी ट्रेनिंग देंगे, for example beautician, stitching, all these kind of trainings, maybe a driver's course। फिर इनको हम एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे, इनके बिजनेसेस चालू कराएंगे। दिस इज अ 3-year प्रोग्राम। उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक सीड कैपिटल दिया जाएगा, उनका प्रोड्यूस उनसे खरीद के आगे बेचा जाएगा। टिल द टाइम these women become totally self-sufficient, independent, we will hand over to them and make sure that 5000 families have a respectable life ahead। This is our program, one of the major programs। मैं आपको एक हमारे बहुत ही यूनिक और स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। दिस प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड द प्रोजेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन। ये इंडियन आर्मी ने रोटरी को इनवाइट किया है कि हम लोग साथ मिलके कश्मीर में शांति लाने का प्रयास करें। जो काम मिलिट्री नहीं कर सकती, वहां रोटरी कंट्रीब्यूट करे। बच्चों को पढ़ाना, एम्बुलेंसेस देना, स्कूल बसेस देना, मेडिसिन देना, ये सब काम हमने कश्मीर में बहुत किया है। उसका एक रेसिडुअल इफेक्ट ऐसा हुआ कि यहाँ की जो वेस्टर्न नेवल कमांड है, उन्होंने हमको इनवाइट किया था एक प्रोजेक्ट करने के लिए। इनको 2 हॉस्टल बनाने हैं। 2 साल पहले की बात है, तब उन्होंने हमको बताया था। उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी नेवी का एक लॉ है कि अगर कोई विडो है, एक मार्टियर की विडो, जो देशभक्त सोल्जर की जान चली जाती है वॉर फ्रंट पे,
उनकी जो बेवा हैं, विडोज हैं, उनको 2 साल के लिए आर्मी नेवी अपने कैंपस में प्रोविजन देती है कि वो वहां रह सकते हैं। उसके बाद उनको वो घर वेकेट करना पड़ता है। अब नेवी की इच्छा थी कि अगर कोई नेवल कमांडो की बीवी, अगर कोई विडो है, उसको अपने गांव या नेवी छोड़ के नहीं जाना पड़े, तो रोटरी ने एक सिंगल प्रोजेक्ट उनको करके दिया है। सनातन टेक्सटाइल्स की मदद से 4.5 करोड़ रुपए का दो हॉस्टल हमने बना के दिए, एक उनके CSR फंड से। आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू, मैं आपको लेके चलूंगा। 1 BHK यूनिट्स हमने 2 फ्लोर की 2 बिल्डिंग्स बनाई हैं इन द नेवी कैंटोनमेंट इन मांगखोड़। तो यहाँ 72 विडोज आज रिस्पेक्टिवली इज्जत से अपनी छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रही हैं, बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सनातन टेक्सटाइल एंड द एफर्ट पुट बाय रोटरी। थैंक यू वेरी मच। Last year, our president of Rotary International had a brother who suffered mental illness, so one of the things that he has stressed is to work on mental illness, and there are many projects in the whole world going on to try to help people with the mental illness. Lots of projects being done. It is not meant only for those who are suffering from cerebral palsy or anything else. Even you and I, common man after COVID, has been suffering from stress, which has caused a lot of mental stress and mental harm. So we are working on a lot of those projects. In Nagpur, the outstanding work being done by Rita Agarwal. Hindi में बताओ। अच्छा ठीक है। तो बहुत सारा काम हो रहा है मेंटल हेल्थ के लिए, और ये नहीं कि खाली जो सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड है और मेंटल हेल्थ से अफेक्टेड है, आम जनता को भी इसकी जरूरत है। ये हमें जानकारी है। आम जनता को भी उनका मेंटल हेल्थ कंडीशन इंप्रूव करने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम रोटरी क्लब ने लिया है, मुंबई में लिया है, इंडिया में लिया है, सारे देश में काम कर रहे हैं और एकजुट करके ये काम हो रहा है। सिर्फ कई हॉस्पिटल्स में होते हैं, डॉक्टर्स के पास होते हैं, डॉक्टर्स हु आर डूइंग इट फ्री है, कोई पैसा नहीं लेते इसमें। देयर इज नो चार्ज फॉर दीज प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग डन for mental health. Happening in Nagpur is a hospital which is run only for this. There is something in Gurgaon which is happening only for this. Mumbai mein there are many centers where clubs have taken over only for this.